حیدرآباد رنگاریڈی محبوب نگر ٹیچرز MLC حلقے کے لیے دوسرے دن 3 پرچہ نامزدگیاں داخل کی گئیں۔ ڈی ملا ریڈی، جی ہرش وردھن ریڈی، جی کشور ریڈی نے پرچہ نامزدگیاں داخل کی۔ اب تک 8 امیدواروں نے پرچہ نامزدگیاں داخل کی ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے محمد قدیر کے جلوس جنازہ میں شرکت کی، جن کی پولیس اذیتوں کے سبب موت ہو گئی۔ کوثر محی الدین نے اس معاملے کے سلسلے میں SI راج شیکھر، کانسٹیبلز پون اور پرشانت کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کرنے کے لیے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے نمائندگی۔ اسی دوران مقتول قدیر کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس ویڈیو بیان میں کہا کہ پولیس عہدیداروں نے انہیں شدید طور پر زد و کوب کیا۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے مرکزی وزراء نرملا سیتارمن اور جی کشن ریڈی پر گمراہ کن بیانات دینے کا الزام لگایا ہے۔ گجویل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ وہ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کے گمراہ کن بیانات کی شدید مذمت کرتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے مرکز کو نئے میڈیکل کالجز کی منظوری کے لیے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی، جبکہ مرکزی وزیر کشن ریڈی مرکز کی جانب سے تلنگانہ کو 8 میڈیکل کالجز منظور کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے غلط تشہیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں مرکزی وزراء کے بیانات میں کافی تضاد ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے 157 میڈیکل کالجز ملک بھر میں منظور کرنے کا اعلان کیا تھا، جو مکمل طور پر مرکزی حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے ہیں۔ مرکز کے اس اعلان کے بعد تلنگانہ حکومت نے کھمم اور کریم نگر کے لیے 2 میڈیکل کالجز منظور کرنے کی درخواست دی تھی، لیکن وہاں پہلے سے خانگی میڈیکل کالجز رہنے کا بہانہ بناتے ہوئے تلنگانہ حکومت کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے ساتھ شدید ناانصافی کی ہے۔ صدر PCC ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ بے روزگاروں کے ساتھ KCR حکومت کھیل کھیل رہی ہے۔ انہوں نے جنگاؤں ضلع کے اسٹیشن گھنپور میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے حصے کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رکن اسمبلی راجیا MLC کڈیم سری ہری نے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دی، تاہم اسٹیشن گھنپور کی ترقی کے لیے ان دونوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ ریونت ریڈی عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے یہ یاترا کر رہے ہیں۔ وزیر اسپورٹس سرینواس گوڑ نے یوگا کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام کو صحت مند ہونے کے لیے یوگا ہی اصل طریقہ ہے۔ LB اسٹیڈیم میں یوگا پروگرام میں وزیر موصوف نے حصہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہی یوگا کی شروعات ہوئی، لیکن ہم کو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں یوگا کیا جا رہا ہے، ریاستی حکومت آنے والے دنوں میں یوگا پر توجہ مرکوز کرے گی۔ پیداپلی ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں BRS کے لیڈر B تروپتی کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ ضلع کے بسنت نگر کے قریب اس وقت پیش آیا جب تروپتی نے کار کا توازن کھو دیا اور یہ کار کلوٹ سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ تروپتی برسر موقع ہلاک ہو گیا، جبکہ کار میں سوار مزید 2 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی، جس نے تروپتی کی نعش کو پوسٹ مارٹم اور زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ اس حادثے میں کار کو شدید نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ کے سلسلے میں ان کے پوتے ہمانشو کی جانب سے خوبصورت پرندوں کو چھوڑا گیا۔ کیمپ آفس پرگتی بھون میں اس سالگرہ کے موقع پر اس خصوص میں ہمانشو نے ٹویٹ کرتے ہوئے اطلاع دی اور کہا کہ ان خوبصورت پرندوں کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ کی فکر مند شاندار ہے۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر ارشد ایوب نے کہا ہے کہ HCA کے انتخابات کے لیے وہ تیار ہیں۔ انہوں نے HCA کو تحلیل کرنے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ قبل ازیں میچ کے ٹکٹس کی فروخت کے معاملے کی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے تمام امور سے سپریم کورٹ کی کمیٹی کو واقف کروایا جائے گا۔ BRS NRI سیل عمان کی جانب سے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ تقریب منائی گئی۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں BRS NRI سیل کے سربراہ مہی پال ریڈی کی صدارت میں یہ تقریب بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی۔ اس سالگرہ کی تقریب میں NRIs نے شرکت کی۔ اس موقع پر کیک کاٹا گیا اور وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے
नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कार ड्राइवर 7 करोड़ रुपए मालियत के तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गया। राधिका नामी खातून माधापुर के माई होम भोजा अपार्टमेंट में रहती हैं, जो जेवरात का कारोबार करती है। मशहूर ज्वेलर्स से हीरों के जेवरात की खरीदारी और फरोख्त इसका कारोबार है। राधिका के अपार्टमेंट में रहने वाली अनुषा नामी एक और खातून ने राधिका को 50 लाख रुपए के हीरे के जेवरात का ऑर्डर दिया। अनुषा जुमे की शाम मथुरा नगर में अपने रिश्तेदार के घर पर थी। राधिका ने उससे रब पैदा किया और कहा कि वो अपने ड्राइवर श्रीनिवास के जरिए ये जेवरात उसको भेज रही है। कार का ड्राइवर श्रीनिवास कार समेत 7 करोड़ रुपए के हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में एसआर नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। तेलंगाना में कबायलियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गिरिजन तंजीमों ने दरख्वास्त दाखिल की है। रिजर्वेशन पर रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकाम पर सवाल उठाया गया। इस दरख्वास्त में कहा गया कि तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए जारी जियो कानून के मुताबिक नहीं है। इस जियो से कबायलियों को नुकसान होगा। रियासती हुकूमत के इन अहकाम पर दीगर रियासतों के सुगाली, लम्बाड़ा, बंजारा तबक़ात को ही फ़ायदा होगा। जनूबी अफ्रीका से मज़ीद 12 चीते हिंदुस्तान लाए गए। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। जोहानिसबर्ग से बजरिया तैयारा इन चीतों को लाया गया। इन अफ्रीकी चीतों के लिए पार्क में 10 इंक्लोजर्स खुसूसी तौर पर बनाए गए। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला और मरकज़ी वज़ीर इन चीतों को पार्क में छोड़ेंगे। कराची में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पुलिस दफ्तर की छत पर 3 दहशतगर्दों ने खुद को उड़ा लिया। कार्रवाई के दौरान एक रेंजर और एक पुलिस मुलाजिम समेत 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि कराची पुलिस दफ्तर में कमांडोज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। पुलिस ऑफिस में एक और ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया और शीशे भी टूट गए। ज़राए ने कहा कि हमला शाम 7:10 पर किया गया। कराची पुलिस दफ्तर में 8 से 10 हमलावरों की मौजूदगी की इत्तलात मिली थी। पुलिस ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग और धमाके भी सुने गए। हेडक्वार्टर्स की लाइट्स और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पुलिस अहदेदारों ने कहा कि इमारत का 4था फ्लोर खाली करवा दिया गया है। हमलावर गाड़ियों में कराची पुलिस दफ्तर पहुंचे। दोनों गाड़ियों को बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला चेक कर रहा है। एक गाड़ी इमारत के अखब, दूसरी गाड़ी सामने खड़ी मिली है। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि हमलावरों ने छत पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। छत पर जाने का वाहिद रास्ता सीढ़ियों से होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। AIMIM सरबराह व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा के भिवानी जिले में 2 मुस्लिम नौजवानों के मुबैना कत्ल पर बीजेपी और RSS पर तनकीदें की हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अगवाकारों को बीजेपी और RSS की हिमायत हासिल होने का इल्जाम लगाया। जुनेद नासिर के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। ओवैसी ने बुनियाद परस्त अनासिर को फरोग देने का बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि राजस्थान की हुकूमत लापरवाही न बरती तो 2 नौजवानों को गौ रक्षकों के हाथों कत्ल करने से बचाया जा सकता था। MP हैदराबाद ने कर्नाटक में टीपू सुल्तान का नाम लेने पर दी जा रही धमकियों पर भी शदीद एतराज किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने हरियाणा में 2 मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जला देने और तेलंगाना में पुलिस की ईजा रसानी में मुस्लिम नौजवान की हलाकत के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए खातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का पुरजोर मुतालबा किया है। मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फहीम, सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी व दीगर जिम्मेदारान ने मेदक पुलिस की बर्बरियत के सबब एक मुस्लिम नौजवान अब्दुल खदीर खान को पुलिस तहवील में अजियतें दिए जाने के बाद उनकी मौत हो जाने के वाक़े का सख्त नोट लेते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से इस वाक़े के खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और वाक़े की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब राजस्थान में बजरंग दल शरपसंदों के 2 मुस्लिम नौजवानों को अगवा कर लेने और फिर उन्हें जिंदा जला देने के वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की खामोशी पर भी फोरम ने सवाल उठाए हैं और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो कोई न कोई बहाने से मुसलमानों को हरासा किए जाने के इस वाक़यात का सख्त तरीन नोट लेते हुए इसके तदारुक के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करें।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने मेदक पुलिस के तशद्दुद के सबब फौत हो जाने वाले खदीर खान के अहले खाना को 50 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा किया है। मेदक पुलिस की जानिब से शुबे की बुनियाद पर खदीर खान को हिरासत में लेने और फिर उनके साथ शदीद मारपीट करने के वाक़े पर कौसम मोहिउद्दीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मकतूब रवाना करते हुए मरहूम के अफराद खानदान को 50 लाख रुपये एक्सग्रेशिया एक डबल बेडरूम का मकान फराहम करने की दरख्वास्त की है। टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी उस्मान शाकिर ने गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन को एक याददाश्त पेश करते हुए खाती पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। सरखे के इल्जाम में गिरफ्तार मोहम्मद खदीर खान को पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लिया था। पुलिस की जानिब से शदीद मारपीट किए जाने से जख्मी होने वाले खदीर खान 16 फरवरी को गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गए। इस वाक़े के बाद पुलिस की कारकर्दगी की मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस रहनुमा उस्मान शाकिर ने भी तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की, उन्हें एक याददाश्त सौंपी और मरहूम अब्दुल खदीर के साथ इंसाफ करने, उनके अफराद खानदान को मुआवजा देने की दरख्वास्त की। आपको बता दें कि डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार ने इस वाक़े की जामे तहकीक़ात के अहकामात जारी करते हुए एक सीनियर ओहदेदार को तहकीक़ात की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि आईजी चंद्रशेखर को तहकीक़ात का निगरानकार मुकर्रर किया है। एसपी को मेदक सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव ने मशीराबाद हलके में घर घर हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का आगाज किया। अंजन कुमार यादव ने घर घर हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का आगाज करते हुए पार्टी परचम लहराया। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होने वाले अवामी तकालीफ पर मुबनी हैंड बिल्स भी घर घर तकसीम किए। कारगुजार सदर ने अवाम से मुल्क में सेक्युलर हुकूमत के क़याम के लिए कांग्रेस पार्टी को आइंदा इंतखाबात में वोट देने की अपील की है। याद रहे कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का मकसद मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, मरकजी व रियासती हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को अवाम तक पहुंचाना है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार यादव, साबिक कॉर्पोरेटर्स आर कल्पना यादव, मोहम्मद वाजिद हुसैन व दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एहलकार की जानिब से एक ऑटो ड्राइवर को हरासा किए जाने का मामला सामने आया है। सैयद इकबाल अहमद साकिन चंद्रानगुट्टा के मुताबिक वो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रानगुट्टा सीआई की जानिब से उन्हें जदुकोब और हरासा किया जा रहा है। आइए सुनते हैं तमाम तर वाक़े की तफसील। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।